to have discussion about innovation. All of you must have heard this term innovation. Yes or no? Yes, sir. What is it? Yes. Anyone? What do we mean by innovation? Sir, innovation is like invention plus commercialization. Okay. Invention plus commercialization. Okay. Anyone else? So make something new. To make something new. So you mean something related to making new, commercializing that, something which is new, like that, right? Is it so? So fine, I got an idea from you. Let's have discussion on what innovation actually is. So I'm sharing the PPT, and let's start with, basically this comes as an integral part of design thinking. We will discuss later on what design thinking is. So today we are going to discuss innovation. I think we should not wait for some others to join. We should continue because अभी कम लोग आए हैं, लेकिन wait तो नहीं किया जा सकता. Yes. अभी 16, हाँ, increasing number is increasing now. 15 are there. So fine, let's continue with it. So slide is visible to you? Yes, sir. हाँ. अभी अगर कहीं मूव ना करे तो बता देना. हालांकि आज मैंने रिकॉर्डिंग का जिम्मा किसी और को दे दिया है. So I need not to worry about that. Fine. So अभी मूव कर रही है स्लाइड? मूविंग? No, sir. नो. चलिए तो फिर हम ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही चलते हैं. ओके ओके. Let me zoom at 140%. चलो ऐसे ही करते हैं. So once, it's very interesting, once, from Henry Ford, somebody asked कि कैसे आप इनोवेशन को कैसे लेते हो, आपके दिमाग में कैसे ये कार का आइडिया आया, हाउ हैव यू कंसीव्ड दिस आइडिया, बिकॉज द मेकिंग फर्स्ट कार, the credit actually goes to Henry Ford. तो तब उन्होंने कुछ ऐसे कहा था कि if I had asked the public what they wanted, they would have said a faster horse. That means when Henry Ford came up with a car, a motor car, nobody would have ever thought about such an invention, such a machine, with the help of which, people can commute, people can travel, transportation can become so easier.
So Henry Ford said, at the time when we conceived to have this kind of product, this kind of innovation, even nobody was thinking of that something like this can happen. कि कोई मोटर कार भी आ सकती है। उस समय अगर उन्होंने वो कहते हैं कि अगर मैंने उस समय कहा होता, लोगों से पूछा होता कि भाई आपका अगर ट्रांसपोर्टेशन और तेज होना हो तो हम लोग क्या करें, तो लोग कहते कि हम और बेहतर घोड़ों की तलाश करें। So this quote itself tells us so many things, that even one who innovates can have the potential to offer the people those things which they would never have thought of. The need they can cater which people actually have never thought of, that this actually exists. This is what Henry Ford's quote, this particular quote, states about. So innovation has that power, with the help of which something this much dramatic and revolutionary can be brought forth. Now let's have a look on the most innovative companies of 2020. This list is of BCG, top 5 companies. Which one is at the top? Somebody speak up, please. Apple. Apple, sir. Followed by? Alphabet. Followed by? Amazon. Amazon. Followed by? Microsoft. And then? Samsung. What do you know about Apple? Sir, Apple deals in various mobiles and technological devices, cutting-edge mobile devices and very high-quality mobile devices. Good. When this logo we remind in our mind or we see, all of a sudden one thing strikes to our mind, that is cutting-edge technology. When we see Alphabet, what strikes to our mind? Sir, this is a company that is a mother company of various technological innovative companies, and I think various technological innovative companies like Facebook and something. Facebook, no, not Facebook. Somebody tell me. इतना तो आता होगा, मोस्ट इनोवेटिव कंपनी की सेकंड लिस्ट में उसका सेकंड प्लेस है ना? इतनी फेमस कंपनी है. फेलिंग टू टेल मी अबाउट अल्फाबेट. कौन बताएगा? कोई तो बताए. किस कंट्री की है ये तो बता दोगे? So it is an US company. यूएस कंपनी है. क्या पोर्टफोलियो, क्या करती है, कुछ तो बताओ भाई. काफी कुछ आपने सही बताया. क्या नाम है आपका? Sir, Somnath. तो ये भी बेसिकली मदर कंपनी ही है बहुत सारी कंपनीज की, जिसमें स्पेशली गूगल जो है, जिसके ओनर लैरी पेज एंड सर्गेई ब्रिन हैं. तो बेसिकली ये मदर कंपनी है गूगल की और तमाम एसोसिएट कंपनी की, जो बहुत सारे ओरिजिनल इनोवेटिव एप्लीकेशंस, राइट, सॉफ्टवेयर बनाते हैं.
तो ये वो है। तो मोस्ट इनोवेटिव कंपनी की लिस्ट में सेकंड नंबर पे आती है। तो आप समझ सकते हो कि उसका इनोवेशन में क्या रोल होगा। एंड थर्ड, अमेजॉन। जो अमेजॉन के बारे में क्या जानते हैं आप? सर यूएस की कंपनी है, इसके फाउंडर जेफ बेजोस हैं। ई कॉमर्स की एक बहुत बड़ी जायंट फर्म है जिसने पुरानी किताबों से सेलिंग और बाइंग से और स्टार्ट ई किया था। कॉमर्स में जो रिवॉल्यूशन आई है उसका एक्चुअली क्रेडिट अमेजॉन को दिया जा सकता है, राइट? है ना? तो बहुत सारी चीजें जो जो ई कॉमर्स डोमेन में हो रही हैं और होने वाली हैं, वो इतनी बड़ी डिजिटल मार्केट बनाने का, जो कि कंज्यूमर बेस्ड मार्केट, तो वो बहुत बड़ी अपने आप में एक इनोवेशन है। इस तरह से वर्चुअल मार्केट को बना लेना और फिर उसमें आगे बढ़ना बहुत सारे एप्लीकेशंस के साथ। अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट भी हम सब जानते हैं और सैमसंग भी हम सब जानते हैं। तो ये जो कंपनीज हैं, आज अगर ये मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की लिस्ट में है या मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज की लिस्ट में है ग्लोबली, या मोस्ट टॉप्ड ऑफ मल्टीनेशनल्स की लिस्ट में है, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है, वो सबसे बड़ी जो इनकी यूएसपी है, वो क्या है? इनोवेशन। Innovative, right? इनोवेशन, राइट? इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो ये 2020 का डेटा आपने देखा। अब जरा देखें हम 2010 से 2018 तक का सीन। टॉप 10 मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज की जर्नी किस तरह से चल रही है। गिव अ मिनट टू योरसेल्फ and just see it right from 2010 to 2018. Any quick observation? Sir, in Apple, there is a slight decline between 16 to 17. And in Amazon, there is a great rise from 16 to. आप और किसी का कोई ऑब्जर्वेशन? बाय द टाइम फ्रेम में सर अगर देखा जाए 2013 से टेस्ला ने अपने आप को काफी इनोवेटिव अप्रोच डेवलप करते हुए फोर्थ पोजीशन अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं। एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो काफी हद तक कंसिस्टेंट है और अल्फाबेट यानी जो गूगल की पेरेंट कंपनी है। और अगर ग्रोथ को देखें 2012 से लेकर 18 के बीच में अमेजॉन ने अच्छी खासी अपने आप को इनोवेटिव वे में अप्रोच डेवलप की। यही देखा जाए तो इनिशियली अभी नेटफ्लिक्स भी आ रही है उस रेंज में, इंटेल है, लेकिन आईबीएम पहुंचते पहुंचते 2017 तक फिर वो इनोवेटिव लिस्ट से फिर वो गायब हो रही है आईबीएम। एक छोटा ऑब्जर्वेशन है सर मेरा। ये पिक्चर अपने आप में बहुत कुछ बता रही है। और ऐसा नहीं है, जो यहाँ पे आप इनकी प्लेसेस देख रहे हो उसी तरह से इनके रेवेन्यू के फिगर्स भी रिफ्लेक्ट कर रही है। क्योंकि आज जो जो एरा है इसमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन
इनोवेशंस, मैक्सिमम इनोवेशंस तो वही कटिंग एज टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप या टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप्स आज जो आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं। तो ये जो कंपनीज हैं ये सब एक तरह से, आप पीएनजी को ले लीजिए तो वो उनका अपना वो एफएमसीजी का आपको दिखेगा। बाकी आप अगर इन कंपनीज को राइट साइड पे अगर गौर करें तो एप्पल, अमेजॉन, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, सैमसंग, फेसबुक, जीई, इंटेल, नेटफ्लिक्स। आप 2010 से जहां पे पीएनजी को भी कोई प्लेस था और अब वो वहां पे नहीं है, पीएनजी गायब हो गई है, राइट। तो अब आप गौर करें राइट साइड की लिस्ट में आपको या तो डायरेक्टली टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, राइट, या फिर वो कंपनीज हैं जो जिनका 100% या काफी हद तक ओरिएंटेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड है। टेस्ला अगर ऑटोमोबाइल कंपनी भी आपको यहाँ पे दिख रही है, जहां पे कभी टोयोटा हुआ करती थी 2010 में, अगर आप देखें 5th नंबर पे क्या थी, टोयोटा, और अभी कहा वहां पे उसकी जगह किसने ले ली, टेस्ला ने। तो कैसे टोयोटा को टेस्ला ने रिप्लेस किया, टेस्ला की स्टोरी हम लोग, टेस्ला की केस स्टडी हम आगे देखिए मौका मिलता है तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा थारोली उस केस स्टडी को। दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी ऑफ टेस्ला। इनोवेशन को अगर हमें समझना है तो हमें उसको भी समझना चाहिए। आप देख सकते हो 2010 में जो 3M की अपनी एक जगह थी और बहुत प्रोमिनेंट प्लेस था। This company was at third place in the top 10 list of most innovative companies and which is not having any place today. कम से कम 10 में नहीं है, 10 के बाहर है। तो ये अपने आप में ये करीब 8-9 साल की जर्नी यहाँ पे जो आप सामने देख रहे हो, या फिर आपने पीछे वाली स्लाइड में देखा, यहाँ पे भी आप जो टॉप 5 देख रहे हैं, तो दोनों में आप देखोगे कि जो 18 में पेस बिल्डअप हुआ है वही कैरी कर रहा है 20 में भी, लगभग वैसे ही है। एप्पल, अल्फाबेट, अमेजॉन, यहाँ पे आपने देखा एप्पल, अल्फाबेट थर्ड पे था 18 में और अमेजॉन सेकेंड पे था। तो 20 में क्या हुआ कि अल्फाबेट और अमेजॉन का प्लेस बदल गया, माइक्रोसॉफ्ट अपनी जगह पे बना रहा और यहाँ पे 20 में सैमसंग आ गया जो कि 18 में टेस्ला था। ये ऊपर नीचे यहाँ पे हुआ। So this tells us something about, where the world is heading, where the industries are heading, and who is actually ruling the industry. What is actually ruling the industry? This is something we can, of which we can have some observation from this particular slide. Steve Jobs जो Apple के लीडर थे, अब नहीं है, उन्होंने देखिए क्या कहा। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि इनोवेशन इज द एबिलिटी टू सी चेंज एज एन अपॉर्चुनिटी, नॉट अ थ्रेट। जब हम इनोवेशन की बात करते हैं और उसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी के बारे में आपने कहा कि एप्पल और एप्पल की प्लेस आप बराबर देख रहे हो, फर्स्ट बना हुआ है एक्सेप्ट 2017, तो आप समझ सकते हो कि ये सस्टेनेबिलिटी, this is the sustainability of innovation by the company, how a company is continuously sustaining on top of the place, top of the pyramid of innovation. And then Steve Jobs becomes the authority of innovation. He says innovation is the ability to see change as an opportunity, not a threat. But in most of the cases what happens, we take change as a threat rather than opportunity. We don't actually want to change. We are resistant to change. चाहे हम अगर एक ऑफिस में बैठ रहे हैं और हमसे कह दिया जाए साहब इस ऑफिस को छोड़ के आपको उस वाले में बैठना है, the first reaction will be unhappiness, will be showing the marks of discomfort. अरे यार कितना झंझट होगा, क्या होगा? Is it so or not? Please give me some feedback. Aren't we resistant to change, or we are always ready to change? What actually happens with you?
Can anybody tell me? क्विक रिस्पॉन्स. इतना वेट करना पड़ेगा तो टाइम किल होता है, फिर मन नहीं करता मैं आपसे बात करूं, मोनोलॉग ही करता रहूं. Sir, human nature is resistant to change. हाँ, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस टू चेंज है, दिस इज द बिगेस्ट बैरियर. Yes, it becomes a barrier. और ये आप सबके मतलब इम्प्रूवमेंट के लिए बैरियर भी बन जाता है. बैरियर बन जाता है. तो सबसे बड़ा बैरियर इनोवेशन के लिए यही है, until and unless we change our glasses, lenses to see the change as a innovation driver, change as a growth agent. इसको हम ऐसे अगर नहीं देखेंगे कि अगर हमें कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली तो ये शायद हमारे लिए ग्रोथ एजेंट का काम करेगी. हम अगर ऐसे नहीं देखना, ऐसे परसीव करना नहीं स्टार्ट करेंगे, then we are not going to be innovative, we are not going to get something better in the life. So now let's come to the point and read what the innovation is verbatim. So innovation, somebody reads it loudly, please. So innovation is the specific tool of entrepreneurs, the means by which they exploit change as an opportunity for a different business or a different service. Innovation is the implementation or creation of something new that has realized value to others. Right. तो फर्स्ट पॉइंट में जो स्टीव जॉब्स कहते हैं उसको एलैबोरेट कर दिया गया है, और सेकंड पॉइंट में आपको बड़े ही कायदे से समझा दिया गया है कि what actually innovation is. Right? What actually innovation can do, what kind of tool it can be, this is in the first pointer. And in second point, what actually innovation is. This is the implementation or creation of something new that has realized value to others. Something new that has realized value to others. Important बात यहाँ पे, important take away ये है, क्रिएशन ऑफ समथिंग न्यू. यहाँ पे अब हमें क्लैरिटी होना चाहिए. बहुत बार क्या होता है कि सोशल साइंस डोमेन वाले कहते हैं कि साहब हम क्या इनोवेट करें. इनोवेशन इज द ओनर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पीपल. वी आर फ्रॉम आर्ट, वी आर फ्रॉम म्यूजिक, वी आर फ्रॉम फाइन आर्ट, वी आर फ्रॉम MBA, वी आर फ्रॉम BBA. What can we innovate? We don't know the technology. We don't understand technology in better way. We are Hindi teacher. How can we innovate? We are English teacher. How can we innovate? We teach marketing. How can we innovate? Like many a time, I have heard people saying that this is not their cup of tea. But actually, this is not the reality. Everybody, anybody on this planet can be innovative. So that means we do have some, fallacies, some misconceptions about innovation. We don't understand innovation in a right way. So let's understand innovation in a right way in forthcoming slides. मैं आगे एलैबोरेट करता हूँ. कुछ मिसकॉन्सेप्शंस जो होंगे, भ्रांतियां होंगी, और रियलिटी क्या है आगे की स्लाइड्स में हम उस पर बात करने वाले हैं. तो अब हम उससे आगे बढ़ते हैं कि कैन इनोवेशन लीड टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इफ वी टॉक ऑफ मार्केटिंग और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. कि क्या इनोवेशन कुछ कर सकता है जिसकी हेल्प से हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएट कर सकें. चलिए इस पे हम थोड़ा एक डिस्कशन खोलते हैं. Suppose you are an entrepreneur, first generation entrepreneur. You are coming with, what would you be thinking to bring in a product of what kind in comparison to your competitors? कैसा प्रोडक्ट आप चाहोगे लॉन्च करना कॉम्पिटिटर्स के कॉन्टेक्स्ट कंपैरिजन में. सपोज कोई एक प्रोडक्ट भी हम ले लेते हैं. कोई प्रोडक्ट ले लीजिए. एनीबॉडी टेक अ प्रोडक्ट एग्जांपल.
क्विक बेवरेज बेवरेज, चलिए बेवरेज हम लेते हैं, फाइन। बेवरेज में हमने क्या लिया? वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स ले सकते हैं सर। सॉफ्ट ड्रिंक हमने कोई लिया, फाइन। तो सॉफ्ट ड्रिंक हमने लिया, सॉफ्ट ड्रिंक की दो कंपनीज हमारे सामने बहुत बड़ी कंपनीज हैं, राइट? कौन कौन सी? कोका कोला एंड पेप्सिको। पेप्सी एंड कोक, राइट? तो हम मान लेते हैं कि आप में क्षमता है इन दोनों कंपनी से लड़ने की। हालांकि दुनिया में एक दूसरे से लड़ने के अलावा कोई तीसरा इनसे लड़ नहीं पाया, है ना? रियलिटी है। पूरी दुनिया, हाँ पूरी दुनिया उन्होंने बायपोलर कर दी है। एक पेप्सी चल रहेगी और दूसरी कोक रहेगी, बस यही दोनों रहेंगी, तीसरा कहीं नहीं। लेकिन खैर आप हिम्मत वाले हैं और आप इतने पावरफुल, इतने रिसोर्सफुल हैं कि आप अपने बेवरेज को लॉन्च करेंगे इनके अगेंस्ट। मैंने मान लिया कि आप कर सकते हैं, फाइन। अभी आपके सामने क्या चुनौती है, क्या चैलेंज है? क्विकली, जल्दी बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो कैपिटलाइजेशन। सोमनाथ बोल रहे हैं ना? यस सर। हाँ आप ही बोलते हो, और कोई तो पढ़ता ही नहीं है आपके क्लास में। अंजना? सर इसके पहले मैं बोल रहा था अच्छा, माधवेंद्र। हाँ नाम बताते चलो, क्योंकि मुझे स्लाइड दिख रही है और कुछ नहीं। मुझे लगा कि सर भूल गए लग रहा है। हाँ भाई, थोड़े और लोग भी बोले तब अच्छा लगेगा, राइट? चलिए, तो ठीक है माधवेंद्र जी। अभी सोमनाथ जी बोल रहे, बोलिए। सर एक तो पहले तो कैपिटलाइजेशन इन कंपनीज का बहुत बड़ा कैपिटलाइजेशन है, और ये जो है अटेन कर छोड़ दो सब फैक्टर छोड़ दो, अभी प्रोडक्ट पे फोकस करना है। प्रोडक्ट में एक तो इनकी प्राइसिंग और इनकी मार्केटिंग, जो प्रोडक्ट की मार्केटिंग और प्रोडक्ट की प्राइसिंग और प्रोडक्ट का पर्टिकुलर फॉर्मूला जो है, कोका कोला का फॉर्मूला जो है वो दैट इज पेटेंटेड एंड गार्डेड वेरी स्ट्रांगली। तो कोला का फॉर्मूला आप अपना फार्मूला लाएंगे, जाहिर है आपका अपना फार्मूला होगा, है ना? और वो फार्मूला कैसा होना चाहिए? इनसे बेहतर। यस सर। यानी प्रोडक्ट में आप क्या चाहते हैं? सुपीरियर देना चाहते होंगे? डेफिनेटली सर, सुपीरियर विद लेट्स से कि इंडियन एक्सपीरियंस। अच्छा, प्रोडक्ट आप सुपीरियर देना चाहते हो, प्राइस में आप क्या चाहते हैं? सर प्राइसिंग इनके लोअर या इक्विवेलेंट रखना चाहेंगे। अच्छा, यानी एनी हाउ आप प्राइसिंग को ज्यादा नहीं सोच सकते हो, ठीक है? क्वालिटी को आप ज्यादा करना चाहते हो, यानी मोटे तौर पे ये जो आप बोल रहे हो यही होता है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर से। मैंने फॉर्चुनेटली हजारों एंटरप्रेन्योर से मुझे बात करने का मौका मिला, टॉक्स उनके बीच में मुझे डिलीवर करने का मौका मिला। इस विषय पे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मैंने ये पूछा और लोगों का यही मानना होता है, मैक्सिमम लोग कहते हैं कि हमें प्रोडक्ट बेहतर देना है। जो भी वुड बी एंटरप्रेन्योर्स हैं या फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट बेहतर हो, अलग हो और उनसे डिफरेंट हो। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करना होगा, राइट? यस सर। डिफरेंशिएशन, आपका प्रोडक्ट अलग होगा तभी तो लोग लेंगे। पहला सवाल हो गई, यस। दूसरा सवाल है कि प्राइस आपके कम हो। यस। अब भाई एक बात मुझे बता दो कि क्वालिटी बेहतर, प्राइस कमतर, कितना फिजिबल है? हाउ मच फीजिबल इट इज? सर फीजिबल है, अगर मतलब अपॉर्चुनिटीज अगर ढूंढे जाए तो इट कैन बी मेड फीजिबल। जैसे कि क्वालिटी बेहतर, नॉर्मल जो लिम्का जो एक ब्रांड है उसमें अगर हम लोग जो है वो कुछ अपने एक अगर हम लोग देखें इस रिगार्डिंग, हमने एक चीज देखा, गाजियाबाद में आज भी एक बॉटल सोडा वो बिकता है, दैट इज दे सेल एज, गाजियाबाद में बिकता है एंड दे सेल इट विद अ स्पाइस, एक स्पाइस मिक्सचर होता है दैट इज एडेड टू दैट बॉटल सोडा
एंड लेमन इज एडेड, तो और वो 10 रुपए में वो जो है वहां पे प्रोवाइड करते हैं एंड इट इज सोल्ड इन द ठेलास आउट देयर. बट आप तो तो ठेले पे कोक तो बेच नहीं पाओगे. नहीं, हम लोग को कॉम्पिटिटर आपका बहुत पावरफुल है. Yes, कॉम्पिटिटर sir. के पास बहुत रिसोर्सेस हैं. Yes, और sir. आपको सस्टेन भी करना है बिजनेस, आपको ग्रो भी करना है बिजनेस, जिसके लिए आपको प्रॉफिट चाहिए, Yes, राइट. sir. पर Yes, sir. आप प्रॉफिट लेना नहीं चाहते हो, क्योंकि आप क्वालिटी बेहतर करोगे तो आपको बेहतर मशीनरी, बेहतर रॉ मटेरियल, बेहतर कंपोनेंट्स, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड शुड बी बेटर, राइट. ये Yes, sir. आपको देना पड़ेगा. और एट द सेम टाइम आपको पैसे कम लेने हैं, बेहतर, यानी सब कुछ बेटर देने के लिए बेटर ह्यूमन रिसोर्स भी आपको चाहिए, जिसको बेटर पेमेंट करना होगा. बट एट द सेम टाइम यू आर चार्जिंग लेस. That means you are going to commit suicide. Yes or no? In most of the cases, Mr. Somnath, it becomes suicidal. Yes, sir, But because it is capital oriented, becomes very capital oriented. you And need to have PepsiCo and profits to Coca-Cola. grow. You need to have profits to grow. You Yes, need sir. to take market share. You need to bring in money to grow, to expand, to diversify. So there is no way. This is a big paradox in business, that you can give superior quality at inferior prices until and unless there is one route, and that route is none other than innovation. None other than innovation. If you succeed in innovating some ways and means to offer better products through cutting cost, through cutting raw materials, through replacing components, through offering new technologies, you could definitely offer a better product with lesser prices, and you can sweep the market like anything. If you have innovation, if you have innovative business model, इनोवेशन एक हो सकता है या आपका इनोवेटिव बिजनेस मॉडल हो सकता है, और जिसकी बेसिस पे यू कैन मेक योर प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ कॉम्पिटिटर्स. This is what is shown in this slide, that innovation can lead to the product differentiation, which ultimately can give you the win, the victory, the clean sweep of the market. Now, how product differentiation can be done? अभी हम ये समझ लें कि innovation can lead product differentiation. Now, how product differentiation can be done? Everybody wants to differentiate. Every new entrepreneur wants to differentiate his product from that of the competitors in the market. चाय बनाने वाला भी अगर हमारे कैंपस के बाहर चाय बनाएगा, तो जो दो और चाय बना रहे होंगे वो सोचेगा, अच्छा ये अदरक डाल के बनाते हैं, हम सौंठ डाल के बनाएंगे, ये चीनी की बनाते हैं, हम गुड़ की बनाएंगे, ये इलायची नहीं डालते, हम इलायची डालेंगे, और उसका अपना फार्मूला वो बनाएगा. वो गुड़ की चाय सौंठ के साथ इलायची डाल के देगा. ऐसा वो करना चाहेगा, जबकि उसने कहीं से एमबीए नहीं किया हुआ है. वो सीएसजेएमयू में पीएचडी नहीं कर रहा है मैनेजमेंट में, लाइक सोमनाथ एंड माधवेंद्र. क्यों? लेकिन उसे मालूम है कि उसे प्रोडक्ट डिफरेंट करना पड़ेगा, तब वो कंपटीशन में अपनी जगह बना पाएगा. तो क्या करें, किन तरीकों से हम प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? अंजना? Yes, sir. क्या कहाँ हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? लाइक पैकेजिंग सर. Packaging, जो पढ़ दो, यही जो लिखा है, डिजाइन, design, Attributes. attributes,
characteristics, aesthetics. एस्थेटिक्स, यानी हम प्रोडक्ट के डिजाइन में चेंज कर सकते हैं। और अगेन ये कब हो पाएगा? इनोवेशन से। इनोवेशन का ध्यान रखें ना, रखना है यहाँ पे हमें हर जगह। डिजाइन में हम चेंज कर सकते हैं। पहले आपको याद होगा कि कंप्यूटर कितना बड़ा हुआ करता था, राइट? अब कंप्यूटर हमारे हाथ में आ गया, मोबाइल के फॉर्म में, एक तरह से कह लें, या चलो मोबाइल को ही ले लो। शुरू के मोबाइल्स आप याद करिए, जब 2000 के आसपास के जो मोबाइल थे, आप में से अगर किसी को याद हो, याद है आपको कैसे थे? यस, बटन, बटन वाले थे, बल्कि थे, यस सर, राइट? साइज Heavy. उसका बड़ा था, एंटीना भी लगा होता था, याद है? यस सर। है ना? सर तब तक आउटगोइंग और इनकमिंग दोनों चार्जेबल थे। हाँ, वो एक अलग बात हो गई, ये भी था, राइट? यस तो सर, ये सॉफ्ट साइड की बात आपने कही, हार्ड साइड की बात हम अभी डिजाइन पे डिस्कशन कर रहे हैं। यस सर। तो तब से आज की जर्नी में आपको क्या डिफरेंस लगता है? आज, तब वो केवल एक सेलफोन था, यस और नो? यस सर। आज ये हमारे हाथ में जो है स्मार्टफोन, ये केवल एक सेलफोन है? No sir, it has become combination of TV, cell phone, entertainment device, recording device, मुझे लगता है camera. अगर हम ये कहें कि 100 डिवाइसेस को रिप्लेस कर दिया तो भी ये हाइपरबोल नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी। सर अगर हम ज्यादा कहते हैं ही, कि 100 डिवाइसेस को इसने रिप्लेस कर दिया होगा तो भी ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। इज इट सो? सर ज्यादा ही डिवाइस, 100 से ज्यादा ही डिवाइस रिप्लेस कर ज्यादा ही होगी, है ना? फॉर Yes, श्योर। आज आप ढेर सारे एप्लीकेशंस डाल लीजिए, माइक्रो स्कोप डाल लीजिए, टेलीस्कोप डाल लीजिए, तो कुछ भी डाल सकते हो, गायरोमीटर है, दुनिया भर के सेंसर्स हैं, दुनिया भर के एप्लीकेशंस डाल के आप कुछ भी कर लेते हो। तो 100 कहना बहुत कम होगा। Yes. अगर ये संख्या 500 भी हो जाए तो देयर इज नो सरप्राइज। No sir. तो तब ये केवल एक सेल फोन था, आज ये 100 या 500 डिवाइसेस का एमलगेमेशन है और एक मिनिएचर फॉर्म है, एक सिंगल फॉर्म है, एक इजी यूजर फ्रेंडली डिवाइस है। Yes, This is what is the journey of a cell phone of 2000 has taken on in 2022 or in 2020. Yes, किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? इनोवेशन की वजह से। पैसे में तब से पैसे बढ़े, तब वो केवल एक डिवाइस थी। जिज्ञासा है कि नहीं? जिज्ञासा नहीं है, ओके। तब ये केवल एक डिवाइस थी। मैं जरा देखूं इसमें और कौन कौन जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोग बड़े इनएक्टिव हैं। ईशा सिंह, यस सर। बताएं जरा कि क्या पैसे तब से ज्यादा चार्ज हो रहे हैं आज? सब पैसे अगर उस टाइम से कंपेयर करें तो सब मनी मोर और लेस सेम होगा, बट फीचर्स डेफिनेटली बढ़ गए हैं। तो अगर वो चार्ज हाई भी कर रहे हैं तो सर उसका वैल्यू है, बेसिकली इट हैज बिकम वैल्यू फॉर मनी। ऐश्वर्या, are you there? Just connected and left the platform. नहीं है ये, इनको अटेंडेंस चाहिए केवल। विभा, डिजाइन हमने कहा कि बहुत बड़े चेंज में ये डिवाइस आ गई और आज सैकड़ों डिवाइसेस का एक मिनिएचर फॉर्म, सिंगल फॉर्म में ये हमारे पास है स्मार्टफोन। प्राइसेस को देखें तो तब से कम हुए हैं या ज्यादा हुए हैं? सर प्राइस का हम देखें तो सर प्राइस, तब फोन महंगे होते थे सर, अब फोन क्या है, फोन कम हो गया है कॉस्ट के सेंस अब प्राइस बहुत कम हो गया है
अगर तब आप फीचर और प्राइस को कंपैरिजन करें तो उस कंपैरिजन में विल फाइंड कि प्राइसेस बहुत गिरे हैं। उसमें हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, कमर्शलाइजेशन हो गया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गई, सो मेनी थिंग्स आर देयर वी कैन टॉक ऑफ कि ये हो गया वो हो गया, दैट्स ऑल ट्रू, बट फैक्ट ऑफ द मैटर लाइज इन innovation that has become possible with the help of innovation. डिजाइन में जो चेंज ये सब इनोवेशन की वजह से हुआ है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। अब हम पुराने और नई की कंपैरिजन को छोड़ दें तो हम आज की डेट में अगर बात करें तो आज भी अगर हम अपनी जगह बनाना चाहते हैं कंपटीशन में तो हमें डिजाइन पे काम करना चाहिए। हम किसी प्रोडक्ट के डिजाइन को चैलेंज करें और उसमें सोचें कि हम इसमें क्या कम कर सकते हैं, इसको कैसे कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, और बस सारी जर्नी इसी पे होती रहती है। यूजर फ्रेंडली डिजाइन हो, कॉम्पैक्ट डिजाइन हो, राइट। जैसे बीपी मॉनिटर पहले कैसे आते थे, आज डिजिटल हो जाना उनका, या थर्मामीटर पहले कैसे होते थे, आज थर्मामीटर का डिजिटल हो जाना, या इस तरह से आपने देखा स्मार्ट वॉचेज का आ जाना जो हमारे हेल्थ का काफी गार्जियन के रूप में काम करे। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि उस पे एक स्मार्ट वॉच जिससे आप कॉल भी कर सकते हैं, जिस पे आप व्हाट्सएप भी मैसेजेस पढ़ सकते हैं और जो आपके हेल्थ को भी मॉनिटर करें। सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स नाउअडेज टेकिंग प्लेस that way, to think that way. This is something what is design related product differentiation which we can achieve. Another one is attributes related, like आप सेल फोन्स में ही देखते हो कि जो एट्रीब्यूट्स आपको, एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हम दोनों को एक साथ लेके बात करते हैं। तो इन दोनों की चीजें एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो एप्पल दे देता है, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जो फीचर्स, जो आपको एप्लीकेशंस और जो सिक्योरिटी डेटा की वो एप्पल देता है, वो दूसरे नहीं दे पाते हैं। और इसीलिए एप्पल की मार्केट अलग है। एप्पल नहीं कहते, एप्पल कंपनी नहीं कहती है कि 10,000 में उसे सेल फोन उतारना है मार्केट में। वो कहती है जिसको 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का चाहिए हो, वो एप्पल की तरफ आए। उनका मार्केट सेगमेंट डिफरेंट है। Apple's market segment is not that of Samsung's or that of Micromax or other Chinese brands. So, and that is what the strength of Apple, and that's why Apple is at the top. वो बराबर, उनका अपना बहुत क्लियर कट विजन है। वो नहीं कहते कि हम आम आदमी के लिए सेल फोन लाएंगे, आम आदमी के लिए आईपॉड लाएंगे, आईपैड लाएंगे, लैपटॉप लाएंगे। नो, दे नेवर से इट। उनका तो आप एडवर्टीजमेंट देखिए, वी ऑफर कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, और जो एडवर्टीजमेंट की लैंग्वेज होती है वो हिंदी में नहीं मिलेगी आपको। क्या एप्पल के एडवर्टीजमेंट हिंदी में देखे आपने? नो सर, नहीं देखे ना। तो अपने आप में एडवर्टीजमेंट बताता है कि उसका क्लास अलग है, उसका सेगमेंट अलग है। सो दिस इज समथिंग कि वो एट्रीब्यूट्स पे अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएशन करते हैं। वो बात अलग है कि बाद में चाइनीज रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो फीचर्स 10,000 में ले आते हैं, वो बात अलग है। और वो फिर बाकी लोगों को, बाकी जनता को वो फोन देते हैं, और वो जनता भी वो एप्पल वाला सुख भोग लेती है। लेकिन द प्राइड ऑफ हैविंग एप्पल for Apple consumers may be different from that of those who are having Micromax or Lava or whatsoever Chinese brands are there. जिस प्राइड के साथ एप्पल के फोन को कैरी करेगा, उसको यूज करेगा, वो प्राइड वो उनके पास नहीं होगा, वो सेंस ऑफ डेटा सिक्योरिटी उनके पास नहीं होगी। मे बी दे मे ऑफर दोज एट्रीब्यूट्स। तो इन एट्रीब्यूट्स पे अब वो कहते हैं हमारा अपना सॉफ्टवेयर होगा, हमारा अपना प्लेटफॉर्म होगा जो आपको डेटा सेफ्टी देगा, डेटा सिक्योरिटी देगा, आपके कोई भी डेटा को आपका चोरी नहीं कर सकता।
ये एप्पल अपने अपने यूजर्स के लिए देता है, ये कोई कंपनी नहीं देती। हो सकता है वो फीचर कॉपी करके बना दे नहीं पाएंगे। एस्थेटिक्स, यू नो, दिस इज मोर ऑफ आर्टिस्टिक पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। अच्छे से पैकेजिंग कर लो, अच्छे से उसमें और बेहतर जो शाइनिंग या जो भी उसके सुंदरता से रिलेटेड चीजें हैं उस पे आप कुछ काम कर दो तो वो प्रोडक्ट डिफरेंट आपका हो जाएगा। This is what the product differentiation can be achieved with the help of innovation in these respects. Till now, any doubt? No, sir. No, sir. नो सर, नो सर। Well, so अभी इनोवेशन कैसे शुरू होता है, कैसे इम्प्लीमेंट होता है और क्या इम्पैक्ट आता है, बेसिकली ये तीन जो ब्लॉक आपके सामने हैं। इनोवेशन एक आइडिया से स्टार्ट होता है। आइडिया हमारे दिमाग में पहले आते हैं, कोई भी नई चीज या कोई भी संसार आज जो जिस शेप में हम देख रहे हैं वो इस शेप में आने से पहले दिमाग में आया होता है। कोई भी चीज जो मूर्ति रूप होती है हमारे सामने, whatever materializes in front of us, physically whatever appears in front of us, first of all it has appeared virtually in our heart and mind. दिमाग में आती है आइडिया के रूप में। So the beginning is idea of innovation. When some innovation takes place, it's implemented and later on its impact is realized in the society, whether this innovation is impactful, whether this innovation has any value for society. This is utmost important for innovation. Any innovation, if has no value for the society, for the human being, cannot improve, cannot solve the problems of society, people, consumers, customers, of no use, worthless. Let's talk about myths about innovation. Myths. Read somebody. First myth. Innovation begins with creativity. Begins with creativity. आपको ये myth लगती है या reality लगती है? Anybody? It can be reality. इनोवेशन क्रिएटिविटी से शुरू होती है, तो ये इसमें कुछ सच्चाई नजर आ रही है या नहीं आ रही है आपको? नहीं आ रही, क्योंकि वो मैंने ऊपर लिख दिया ना मिथ। ऐसे पूछा होता तो आपने कह दिया होता कि क्रिएटिविटी से इनोवेशन होती है, राइट? इनोवेशन इज ए स्मूथ लीनियर प्रोसेस। लीनियर प्रोसेस है, ये भी एक मिथ है। इनोवेशन इज अबाउट रिस्क टेकिंग। इसमें आपको कुछ सच्चाई नजर आती है कि नहीं कि इनोवेशन में रिस्क होता है? Anyone? चलो नहीं बोल रहा हूं, रियलिटी देखो। Innovation actually begins with curiosity. For example, theory of gravity किसने दी? आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन, राइट? क्या कहा जाता है, न्यूटन कहाँ थे लेटे हुए एप्पल के पेड़ के नीचे? यस सर। क्या हुआ था? एप्पल गिरा था उनके सिर पे गिरा। तो सिर पे गिरा, ये तो खैर आपने देख लिया। गुड। तो क्या फिर हुआ? तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्यों गिरा। क्यों गिरा?
ऊपर क्यों नहीं चला गया? ऊपर क्यों नहीं चला नीचे गया? ही क्यों आया? हाँ, तो क्या ये घटना पहली बार घटी थी? नहीं सर। ये तो आदिकाल से गिरता आ रहा था नीचे, राइट? यस और न ही न्यूटन पहले ह्यूमन बीइंग थे इस प्लेनेट पे। बहुत सारे लोगों ने न्यूटन से पहले एप्पल गिरते देखा होगा। यस और नो? यस राइट? सर। यस। बिल्कुल सही, बहुत लोगों ने देखा होगा। लेकिन ये क्यूरियोसिटी और लोगों में नहीं पनपी। लोगों ने कैसे छोड़ दिया इसको? अरे ये तो ऐसा ही होता है, एप्पल तो नीचे ही गिरते हैं। किसी ने इस पे सवाल नहीं खड़ा किया कि एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया, ये नीचे क्यों गिरा, क्यों, why? This why was not thought by anyone. किसी ने why सवाल नहीं सोचा, why नहीं बोला, किसी ने नहीं सोचा. What is this why? This is curiosity. When something happens, we see. Normally हम चले जाते हैं, हम रुक के सोचते नहीं कि ऐसा क्यों हुआ. किसी ने कोई बिहेवियर किया, आपने बुरा या अच्छा लगा, लेकिन आपने ये बहुत कम सोचा कि इसने ऐसे क्यों किया. क्यों जब आप खड़ा करते हो सवाल, क्यों, तो क्यूरियोसिटी होती है. इसे क्यूरियोसिटी कहते हैं. तो एक्चुअली जब आप क्यूरियस होते हो तभी आप क्रिएटिव होते हो और तभी आप इनोवेटिव होते हो. That's why it is said that innovation doesn't begin with creativity, rather with curiosity. Clear? Second myth, innovation is a smooth linear process. No, it's an iterative process. You keep on improving the things. Nothing is full stop. Nowhere is full stop. अगर हमने मोबाइल फोन डिवाइस इनोवेट कर ली होती और कह दिया होता कि नो फुल स्टॉप, ये तो हमने बहुत अच्छी डिवाइस इनोवेट कर ली, तो क्या आज का स्मार्टफोन मेरे हाथ में होता? नो सर. Absolutely not. So it is iterative process, cyclical process. We keep on doing iterations. जो हमने आज अचीव कर लिया, हम कल उससे आगे बढ़ेंगे, परसों और उससे आगे बढ़ेंगे. We keep on doing experiments and trying to improve the current product. और बेहतर, और बेहतर, और बेहतर. We are never contented with the current light, current shape, current design, current features of the product. We continuously keep on thinking about improving it and offering greater product values to the consumers. This is why it is not an linear process. Third, which is innovation is about risk taking. To some extent, risk is there, but often we take calculative risk and we develop, mechanism to mitigate that risk. We try to reduce the risk. तो अगर हम प्लानिंग के साथ इनोवेशन करेंगे तो हम रिस्क को मिटिगेट करने की मैकेनिज्म भी इन प्लेस कर लेंगे. ये हमारे तरीके पे डिपेंड करता है कि टू व्हाट एक्सटेंट द रिस्क इज देयर. जैसे आप बैठ जाओगे, सर ने इनोवेशन बताया और आज हम इनोवेशन अब करेंगे, कोई बहुत बड़ी प्लानिंग करके आपने कहा पीएचडी तो ठीक है चलने दो, पर अब हमको तो इनोवेट करना है. सोचने में लगता है साल लगता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, और आप तब तक नहीं कुछ कर पा रहे हो. तो आप उस बीच न कुछ कमा पा रहे हो, न कुछ कर पा रहे हो, आपकी मैरिज भी नहीं हो पा रही है, लाइफ भी आगे नहीं बढ़ पा रही है. दैट मीन्स यू आर sacrificing too much. तो रिस्क, अगर आप प्लानिंग के साथ करोगे कि भाई पीएचडी मेरी चलने दो, मैं इनोवेशन में थोड़ा वक्त दूंगा, थोड़ा थोड़ा सोचता रहूंगा, रोज पर पीएचडी ड्रॉप नहीं करूंगा, पीएचडी के बाद मेरी जॉब लग जाएगी वो भी करूंगा, पर मैं कंटिन्यूसली सोचता रहूंगा, और आईआईटी भी या कानपुर यूनिवर्सिटी में भी इनोवेशन सेंटर, इंक्यूबेशन सेंटर डेवलप हो रहा, वहां कुछ करूंगा धीरे धीरे और करूंगा. तो आपने मैकेनिज्म अपनी रिस्क को मिटिगेट करने की बना ली और अपने रिस्क को कम कर लिया.
कि आप 5 साल बाद न तो अनएम्प्लॉयड हैं, 5 साल बाद न तो अनमैरिड हैं, और 5 साल बाद न तो आप पुअर हैं, आपके पास पैसा भी है, मैरिड भी हैं, और आपके पास एम्प्लॉयमेंट भी है और इनोवेशन भी होगी। इज दैट क्लियर टू यू? यस सो दैट इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म जो हमें डिवाइस करनी होगी। टाइप्स ऑफ इनोवेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जरा यहाँ पे ध्यान दें। टाइप्स ऑफ इनोवेशन, 4 तरह की इनोवेशन हम यहाँ देख पा रहे हैं। बेसिक इनोवेशंस और बेसिक रिसर्च, डिसरप्टिव इनोवेशंस, ब्रेक थ्रू इनोवेशंस और सस्टेनिंग इनोवेशंस। अब 4 तरह की इनोवेशंस हैं, और इस मैट्रिक्स में आप गौर करें तो लेफ्ट साइड पे प्रॉब्लम डेफिनेशन, और बॉटम पे डोमेन डेफिनेशन है। इसको समझने की कोशिश करो जरा 1 मिनट, फिर हम लोग डिस्कस करें, तब ठीक रहेगा। पढ़ लिया आपने? समझ पाए? Yes, kind of. क्या इससे फिगर आउट कर पा रहे हैं आप? So when the problem is not well defined and the domain is also not well defined, it can be a basic research. And when the problem is well defined but the domain is not well defined, there is a breakthrough innovation. When both are well defined, it is a sustaining one, kind of a R&D labs. And then problem is not well defined, but the domain is well defined. It is a disruptive one. See, यहाँ पे आप 4 तरह की इनोवेशंस देख रहे हैं इस इनोवेशन मैट्रिक्स में। ब्रेक थ्रू इनोवेशन, सस्टेनिंग इनोवेशन, बेसिक रिसर्च, डिसरप्टिव इनोवेशन। When domain is not well defined, when problem is not well defined, basic research is going on. आपका अपना कंपनी के अंदर R&D डिपार्टमेंट है, R&D डिपार्टमेंट अपना यूजुअल वर्क कर रहा है, कंटिन्यूअसली वो इनोवेशन पे काम कर रहा है। दिस इज समथिंग जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में भी R&D सेल हो सकती है, इनोवेशन सेल हो सकती है, कोई भी तरह की इनोवेशन प्रॉब्लम लेके आओ, इंक्यूबेशन सेंटर अपना काम करेगा।
आईआईटी में इंक्यूबेशन सेंटर है, अपना काम करेगा, आपकी अपनी प्रॉब्लम किसी भी डोमेन से हो, टेक ड्रिवन हो, नॉन टेक ड्रिवन हो, कोई भी तरह का कोई भी आइडिया लेके आप पहुंचिए और आप रिसर्च करिए. दिस इज समथिंग. बेसिक रिसर्च जो है, कॉन्सेप्ट पे काम करना, थ्योरी पे काम करके और उसको एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से कनेक्ट करना, और वो प्रॉब्लम कोई भी सोसाइटी की प्रॉब्लम से संबंधित हो सकती है. सो दिस इज कॉल्ड बेसिक इनोवेशन और बेसिक रिसर्च targeted to solve the basic human problems, right? फिर आता है ब्रेक थ्रू इनोवेशंस और डिसरप्टिव इनोवेशंस. इनमें थोड़ा समझने की जरूरत है कि दोनों में अंतर क्या है. ब्रेक थ्रू इनोवेशन और डिसरप्टिव इनोवेशन. सॉरी, जैसे आपने देखा जियो का जो मॉडल था कुछ साल पहले, जब टेलीकॉम इंडस्ट्री में धमाका हो गया था, याद है आपको? जियो का क्या मॉडल था? क्या किया था जियो ने, कोई याद करेगा? तो फ्री डेटा प्लान प्रोवाइड हुआ था उस टाइम पे. For one. सर इनोवेशन 4G टेक्नोलॉजी लाए थे और विद प्रेडिटरी प्राइसिंग टेक्निक. वहां पे मतलब जियो ने एक डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल, टेक्नोलॉजी तो नहीं बदली थी उन्होंने, टेक्नोलॉजी तो नहीं बदली थी. जियो के पास, जियो ने बदला क्या था? क्यों बच्चों? जियो ने टेक्नोलॉजी तो नहीं बदली थी, बदला क्या था? मॉडल, बिजनेस मॉडल. और वो बिजनेस मॉडल कैसा था? डिसरप्टिव. उसे आप डिसरप्टिव इनोवेशन कह सकते हैं, जो जियो का मॉडल था. राइट, उसको आप डिसरप्टिव मॉडल कह सकते हैं. टेक्नोलॉजी नहीं चेंज हुई, कोई रेडिकल चेंज नहीं, लेकिन जो मॉडल लेके आए जिसमें उन्होंने फ्री डेटा दे दिया, एट दैट टाइम नोबडी कुड हैव थॉट ऑफ ऑफरिंग दैट, बट जियो डिड इट. Everybody was stunned. Every one of its competitors was stunned. What has done by Jio? But the reality was that the market was disrupted. Market disruption or this is something which situation in which everything collapses. Set norms collapses. New norms are established. That is what the market disruption. When Jio comes into picture with the disruptive innovative model of offering free data, this was this has demolished all the set norms, rules of the market. And then what kind of difficulties the entire telecom sector, those competitors in the entire telecom sector faced. Even some of the telecom operators went to court to sue Jio. But I think nothing happened. They had to change later on. And the whole telecom sector got consolidated. और उनको वही लाइन लेनी पड़ी जो जियो ने ली. आज वही करते हैं वो जो जियो कर रहे हैं. This is what the disruptive innovation is. With the innovation which has the capability to disrupt, to demolish the set patterns, set rules and regulations of the market. Whereas what is the breakthrough innovation? अब आप दोनों के डोमेन को देखिए. Both domains you can see here.
breakthrough innovation has a well-defined problem, but not well-defined domain. Well-defined problem. आप ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी में चेंज ला रहे हैं, रेडिकल प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट की रेंज में, जो ऑल टुगेदर एक ब्रेक थ्रू आपके अपने प्रोडक्ट जो लाइन है उसके लिए होगा. फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि अरविंदा आई केयर ने जो सर्जरीज का जो मॉडल था उसको बदल दिया. उसने वो रेडिकल चेंज लेके आया सर्जरी के तरीकों में, आई कैटरेक्ट सर्जरी के तरीकों में, प्रोसेस में उन्होंने चेंज कर दिया, जिसकी वजह से आज अरविंदा आई केयर का 99.99% एक्यूरेसी रेट है और अरविंदा आई केयर के जो डॉक्टर्स की एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस है वो पूरी दुनिया में अनपैरेलल है. तो ये ब्रेक थ्रू इनोवेशन आप खुद अपनी ही कंपनी में अपने ही प्रोडक्ट को कैनिबलाइज कर सकते हो ये करके. ब्रेक थ्रू इनोवेशन भी वैसे ही है कुछ डिसरप्टिव की तरह, उसमें भी वही जीन्स हैं जो मार्केट को डिसरप्ट कर सकते हैं. पर जब हम डिसरप्टिव इनोवेशन कहते हैं तो वो सारा कुछ खत्म कर देता है जो पुराना है. ब्रेक थ्रू में उसे एम्ब्रेस करते करते थोड़ा समय लगता है, बस इतना डिफरेंस है. तो जो यहां पे आप देख रहे हो स्कंक वर्क, मैवरिक्स, ओपन इनोवेशन प्राइजेज, ये कंपनी को करना चाहिए, ये कंपनीज ऐसे करती हैं तब ब्रेक थ्रू इनोवेशंस होती है. स्कंक वर्क का मतलब होता है कि स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल विच आर द ग्रुप हैज बीन मेड फॉर सर्टेन पर्पसेस टू हैंडल सर्टेन इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स. वो ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, वो क्लोज्ड ग्रुप होता है जो ऑटोनॉमी जिसको मिली हुई होती है, फुल ऑटोनॉमी होती है वो अपना इनोवेशन करने के लिए. वो विद इन कंपनी वो ग्रुप बनाया जाता है फॉर स्पेशल और एडवांस लेवल प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए, इनोवेशन के. और जो मैवरिक्स है उसका मतलब ये हुआ कि ऐसे लोगों को आप हायर करते हो जो इंडिपेंडेंट माइंडसेट के लोग हो, जो फ्री थॉट थिंकिंग पीपल हो, जो सोचते ही हो ऐसा जो दूसरे ना सोचे, वो अपसाइड डाउन ट्री वाला हाल, जिनको हम लोग पागल कहते हैं. क्या पागलों जैसी बातें करते हो? तो एक्चुअली जो पागलों जैसी बातें करते हैं ना, वो लोग इस काम के लोग होते हैं. कई लोग आपको जीवन में, कई नहीं बल्कि मैं अपने को ठीक करूंगा, बहुत कम लोग ऐसे आपको जीवन में मिलते हैं जो एकदम दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं उस चीज का, दूसरी साइड देखते हैं उस चीज की. हम सब कंडीशनड हैं. पावलोव कंडीशनिंग थ्योरी याद होगी आपको? यस सर. कि अगर हमें कोई गाली देगा तो हम पलट के उसको गाली देंगे. कंडीशन है ना इसके लिए. कोई हमसे गुस्सा होगा तो हम पलट के 2 गुना गुस्सा होंगे. कंडीशन है इसके लिए. यस सर. क्या हम मुस्कुरा सकते हैं कोई हमें गाली दे? बहुत मुश्किल है सर. बहुत मुश्किल है, लेकिन हो नहीं सकता क्या? मुन्ना भाई MBBS मूवी देखी है आपने? बिल्कुल सर. सबने बहुत सराही उस मूवी को. बहुत मूवी की टिकट्स बिकी, राइट? यस सर. था क्या उसमें? सर वो डिफाई कर रहे थे पावलोव को. पावलोव कंडीशन थ्योरी को वो कंडीशन जैसे हैं हम लोग, उससे डिफरेंट बिहेव कर रहा था ना मुन्ना भाई? यस सर. यस सर. बिल्कुल डिफरेंट कर रहा था ना. यस सर.
कोई नया चीज तो नहीं थी, भारत के तत्व, मूल तत्व में यही चीजें हैं, अहिंसा, परमो धर्मा और दुनिया भर की बातें। पर हम उन सबसे विमुख होके दूसरी तरह से कंडीशन हो गए, है ना। तो यस सर। हमें शांति, संयम, सत्य, अहिंसा, ये सब जो हमारे मूल तत्व हैं, हमारे सनातन उसके परंपरा के, हमारे देश की संस्कृति के, पहले तो हम कंडीशन थे, वैसे आज हम कंडीशन नहीं है। तो आज हमें ऐसा लगा कि बहुत मिराकुलस है। वो क्या कर रहा था, वो हग कर रहा था, किसी को गले लगा ले रहा था, टच, हीलिंग टच, ये कोई नई बात तो नहीं थी। नो सर। क्या नई बात थी ये? नो सर। यस, तो यही चीजें मैं कहना चाहता हूं कि हमें सोच में नोवेल्टी लानी होगी। हमें जो जैसे हम कंडीशन है उससे दूसरी तरह से सोचना होगा, और बस हम तुरंत डिफरेंट तरह से हो जाएंगे। तुरंत हमें इनोवेटिव आइडियाज मिलेंगे और हम दूसरी तरह से चीजों को देख पाएंगे, दूसरे डायमेंशन चीजों के देख पाएंगे। दैट्स व्हाट वी नीड टू हैव द पीपल ऑफ दैट काइंड ऑन बोर्ड इन द फर्म्स। हम आगे अगर डिजाइन थिंकिंग पे बात करेंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, तो हम इन चीजों पे बात करेंगे आपसे। कुल मिला के स्कंक वर्क्स, मैवरिक्स, ये सब ऐसी टीम होती है जो बहुत डाइवर्जेंट टीम होती है, ऐसे लोगों की टीम होती है जो ब्रेक थ्रू इनोवेशंस को लेके आते हैं, जो रेडिकल चेंज लेके आता है कॉन्सेप्ट में। अब आप देख सकते हो कि मोबाइल कहां से कहां पहुंचा, उसमें बहुत सारे रेडिकल ब्रेक थ्रू इनोवेशंस हुई हैं। कंप्यूटर कब से आज जो जहां पहुंचा, बहुत ब्रेक थ्रू इनोवेशंस हुई हैं उसमें। दैट इज व्हाट सस्टेनिंग इनोवेशन का मतलब हुआ। जैसे आप देख सकते हो एप्पल नंबर 1, मैंने जो अभी ग्राफ आपको दिखाया था, पीछे 10 साल से एप्पल ग्राफ को टॉप कर रहा है। तो जब आप अपनी इनोवेशंस में सस्टेन करते जा रहे हैं, आपके टाइम स्पेन बढ़ता जा रहा है, आप कंटिन्यूअस उसमें कुछ ना कुछ इनबिल्ट कर रहे हैं, तब आपकी इनोवेशन सस्टेन करती है। तो अभी आगे की स्लाइड में हम मैंने शायद रखी नहीं है वो स्लाइड यहाँ पे, लेट मी शो यू कि अगर हम कंपनीज को भी कैटेगराइज करें तो शायद इन 4 मैट्रिक्स पे हम इस तरह से देख सकते हैं। मैंने ये उसमें रख नहीं पाया, मैं देख रहा था, रखना चाह रहा था इसको। विजिबल टू यू? नो सर। दिख रहा है? अच्छा, नहीं दिख रहा ना? ओके, लेट मी शो यू, लास्ट है, लेट मी शो यू। यस, अब आप देखो इस इनोवेशन मैट्रिक्स में कौन कौन सी कंपनीज कहां रखी गई हैं। आज आपका असाइनमेंट है, ये स्लाइड में आप देखिए, और इस स्लाइड में जो कंपनीज यहां पे मेंशन हैं, ठीक है, आप इन कंपनीज के प्रोफाइल को देखेंगे और इन कंपनीज को क्यों इन कैटेगरीज में रखा गया है, आई वांट जस्टिफिकेशन टुमारो फ्रॉम यू। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ले Have you लिया सर। taken? यस सर, यस सर। कौन सी कंपनीज दिख रही है आपको? दिख रही है ना सारे, हर ब्लॉक में कुछ Yes, कंपनीज sir. दिख रही हैं, हाँ दो सर, कंपनीज पीएनजी दिख रही है, हैं। एप्पल है, टोयोटा है, आईबीएम है, गूगल, अब ये किस, इनमें इनकी लेबलिंग जिस ब्लॉक में है, राइट, आपको कल मैं आपसे जस्ट, आप चाहे तो सभी लोग इस पे तैयार रहेंगे, मैं किसी से भी कुछ भी पूछूंगा। ऐसे ठीक रहेगा या ग्रुप बनाओगे आप लोग, तो बताओ मुझे।
आप लोग 4 ग्रुप बना लो. कैन यू डू दिस? ये पॉसिबल नहीं हो तो मैं सबको इंडिविजुअली बोलूं. बोलो. आप जरा वीडियो ऑन करिए, आप लोग जो कर सकते हैं. सो दैट मैं अटेंडेंस ले सकूं आपकी. Good. यस सर. Very good, Madhavan ji. What are you doing except this PhD? अभी तो और तो कुछ नहीं कर रहा हूँ सर, Good. पीएचडी कर रहा हूँ. हाँ जी. और लोग वीडियो ऑन करें जरा. सभी ऑन रखें जरा, मैं अटेंडेंस लेना चाहता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ. यस, मयंक, सोमनाथ, शिखा, ऐश्वर्या. Good. Yes, sir. Good. Let me take a screenshot. Mayank, are you not there? Yes, sir, I am there. हाँ, वीडियो ऑन, कैमरा ऑन करो आप अपना. Sir, Aishwarya is there, but my Sir, on कर camera रहा है वो actually. is not getting on. Sir, on कर रखा है लेकिन कैमरा ऑन नहीं हो रहा. ये जो 4 तरह के इनोवेशंस हैं, इनमें 2-2 कंपनीज हैं हर ब्लॉक में. आप इसके बाद अपने ग्रुप, आपका अपना कोई ग्रुप है जिसमें आप लोग इंटरेक्ट करते हैं? यस So सर, है there is a ग्रुप. common group. है? So Yes common or group no? है. Yes, sir. कॉमन ग्रुप है. तो मैं ये कहूंगा ज्यादा अच्छा होगा, you divide yourselves into 4 groups. और disruptive innovation, breakthrough innovation, sustaining innovation, basic innovation, बांट लो 4 ग्रुप में और उन 2-2 कंपनीज को स्टडी करो. राइट? फिर हम एक-एक ग्रुप से उन 2 कंपनीज के बारे में बात करने को कहेंगे कि क्यों उनको उस कैटेगरी में रखा गया, उनके कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो ब्रेक थ्रू इनोवेशन जिनका है, या जो सस्टेनिंग इनोवेशन हुआ. इस पे हम आपसे बात करेंगे. कल का मेरा ये एजेंडा है आपसे बात करना. Sir, it will be difficult for us to coordinate because सबका schedule different है. Sir, I think it will be better अगर हम individually कर लें. आप किसी को भी पूछ लेना, मतलब. आई डोंट माइंड. मुझे लगता है कि आपके पास, सबके पास ज्यादा काम होगा फिर 8 कंपनीज को देखना Sir, करना. actually तो it's आई डोंट difficult माइंड. Sir, it is actually difficult to coordinate. नो इश्यूज. फिजिकली होता सर तो पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन Yes, sir. फिजिकली तो है नहीं, ऑनलाइन कैसे. तो फिर वो टाइमिंग का इशू आता है काफी. अंडरस्टैंड. Right. So fine. So आपके पास कंपनीज हैं, 4 टाइप्स ऑफ इनोवेशंस हैं. आप स्टडी करो. We will talk tomorrow about it, right? Okay, sir. ओके सर. Any doubt, any Okay, sir. query today? Any question? नो सर. No, sir. Thank you very much.